Jai Bhim, Jai Mool Nivasi to all present here. It's really a matter of honor to me to be in front of you, to speak in front of you. First of all, I would like to thank our organization, BAMSAFE, that we are celebrating 38th National Convention for Awakening Programs. It's really a great task for human being, for all of us, that we are part of it. Awakening the people is not an easy task. It's not an easy task. Because we belong to a country where is diversity at so many different levels that it becomes very difficult to unite the people when there is diversity on the basis of culture, social values, way of life, their thought process. It's really a big deal for us. It becomes very complex because of our own thought process, I think. To be united is not so difficult as we make it difficult. It's we that make it difficult. Because we are not ready to leave our selfishness. The Constitution gives us so many facilities. Our life has become so much comfortable that we want to relax. We don't want to take any tension. We want to get rid of depression. We want to live in a relaxed mode all the time. Sometimes it becomes very difficult to unite such type of people where thought process is so confined. जब सीमित मानसिकता हम रखते हैं तो समाज को तो भूल ही जाते हैं. हम सोचते हैं हम अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, क्यों हम फालतू के संघर्षों में पड़ें. यही सोच को बदलने का काम BAMSAFE करती है. And I would like to big hand for the organization. I would like to put my opinion in two phases. First one is obstacle in union, and the second one is solution. So far as obstacles are concerned, there are so many obstacles, but I have pointed out some most prominent obstacles that we need to work on that. First of all, I consider we lack strong leadership. Leadership must be strong. There should be a strong character that can join the people to such extent that they follow the path throughout the whole life. But we don't have such type of leaders. Our leaders are, full of selfishness, I think. We have more than 4 lakh organizations in all over India. We are fighting separately. If we are 85% Mool Nivasi, then we are fighting separately.
Our motives, our objectives should be same. Our way of fighting should be same. This is quite possible that we have different thought process and different mind. It is said that different people, different mind. This is quite right. This is 100% right. But still, when we talk about the organization, we need to be united. We need to work on our ideology. We need to work on our thought process. If we don't understand anything, we should communicate with our fellow beings or experts of the ideology on which we want to follow, on which we want to go on. But people are not interested. क्या करना है? Let it be. कर लेंगे, वो सारे लोग हैं लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. हम क्यों खाम अपना बेकार का टाइम वेस्ट करें? When we gather people for some programs, for Jayanti, for 26 January, for Samvidhan Divas, it becomes very difficult to gather the people. Sometimes it becomes very difficult. They don't want to miss the holiday. They forget that ये holiday का concept भी हमें हमारा constitution ही देता है. Or we don't want to miss it. We want to relax. This is the problem of our thought process. किस लिए संघर्ष में पड़ना है? जब हम सब कुछ मिल तो रहा है, हमें बहुत आसानी से सब कुछ पका पकाया मिल गया है. जो संघर्ष किया बाबा साहब ने किया, ज्योतिबा फुले जी ने किया, काशीराम जी के कॉन्सेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है वामसेव के लिए. ऐसी सूरत में हमें बहुत ही कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है. We need to give up our selfishness. जब हम सोशल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं तो हम इंडिविजुअली नहीं सोच सकते. हालांकि हमारा इंडिविजुअल एटीट्यूड बहुत मायने रखता है जीवन में, लेकिन जब सोशल थिंग्स की बात आती है तो वी विल हैव टू हैव ए कलेक्टिव थॉट्स. वी नीड टू यूनाइट द पीपल with our thoughts. One more obstacle in this path, that is, we have different objectives. When we are fighting for social justice, we are fighting for the development of our class, we are fighting for the betterment of the society, then how can our objectives can be different? बचपन में एक कहानी सुनी थी, आप सबने भी सुनी होगी. एक किसान के 4 बेटे थे, चारों आपस में लड़ते रहते थे. तो उसने बच्चों को परेशान हो गया था किसान की सारे बेटे सारा दिन लड़ते रहते हैं. तो उसने लकड़ी का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया. एक लकड़ी को तोड़ा तो आसानी से टूट गई, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की तो नहीं टूटा. हम बचपन में एक मैसेज देते थे हम बच्चों को, एकता में बल को समझाने के लिए, लेकिन बड़े होकर हम खुद ही भूल जाते हैं. दिस इज अवर प्रॉब्लम. वी नो एवरीथिंग, वी नो ह्यूमन वैल्यूज, but don't want to follow this value system. This is a big hurdle, I consider, in the path of union. We know everything. सभी अच्छी बातें हम सबको पता है क्या होना चाहिए. हम सबको पता है बाबा साहब ने क्या किया, हम सबको पता है बाबा ज्योतिबा फुले जी ने हमारे लिए क्या किया. But still we don't want to do anything. बिकॉज हमें सब कुछ मिल गया है बहुत आराम से. तो अगेन हम अपने निकम्मेपन को नहीं छोड़ना चाहते.
वी विल हैव टू गिव द थॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मेरा अपना ये विचार है, मैं तो नहीं जुड़ सकता किसी के साथ, मेरी तो उसके साथ मैचअप नहीं होता, आपस में ही लड़ते रहते हैं। दिस इज अ बिग हर्डल। इसीलिए तो 4 लाख ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 4 लाख ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग थ्रू आउट द होल कंट्री। और आइडियोलॉजी से मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते ना। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भरा रहता है। अगर हम लीडर्स बन गए तब तो बहुत ज़्यादा जाता है, ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है। इफ़ वी आर लीडर, एक घमंड हमारे सिर पर सवार हो जाता है कि अब तो मैं लीडर बन गया, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे थॉट के अनुसार सब लोग चलेंगे, मैं ही सही हूँ, मेरे विचार ही सही हैं, मेरा वे ऑफ वर्क इज ही है जो वही सही है, और किसी का वर्क तो बेकार है। दिस इज द ग्रेट हर्डल इन द पाथ ऑफ यूनिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लीव दिस कॉन्सेप्ट। सुपीरियरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो संगठन तो छोड़ो, नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी बहुत बड़ा हर्डल है। आप अपनी फैमिली में रहते हो और आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आपके फैमिली के लोगों के लिए आप प्रॉब्लम बन जाओगे। और यहाँ तो बात संगठन की हो रही है, जहाँ हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं। छोड़ दीजिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ही सबसे अच्छा है। नो, इट कांट बी। दिस इज नॉट डन। You need to give up this thought. Give value to opinion of other people. ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बेहतर सोचते हों, लेकिन आपको एक विचार मिला और आपने उसे किनारा कर दिया और उस बंदे को अपने आप से दूर कर दिया। अगर हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं भी करती है तो हमें प्यार से, सहिष्णुता से उसकी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी के लेवल में लाने का प्रयास करना चाहिए। उसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वो अपने जैसे को ढूंढ के अपना ही ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेगा। यू एडमिट दिस फैक्ट। अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ दें जिनके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करते, वो अपने लेवल पे अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वो देखें, ये 4 लाख ऐसे नहीं हो गए। कुछ संगठन जिनमें चंद लोग जुड़ रहे हैं वो आवाज को उठाएं, वो ज्यादा काम करेगा, या करोड़ों की भीड़ का जो संगठन है वो आवाज उठाएगा तो वो काम करेगा? कौन सा संगठन काम करेगा? यू नो बेटर, यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू नो वेरी वेल, जिसमें ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, वो संगठन काम करेगा। मैं सिर्फ सिर की काउंटिंग को भी इंसिस्ट नहीं करती हूँ। नंबर ऑफ हेड्स आई थिंक डजंट मैटर, बट नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल हेड्स मैटर्स। सिरों की संख्या काम नहीं करती। भेड़ों का एक झुंड आता है, हिरणों का झुंड होता है, शेर को देखते ही अकेला होता है, फिर भी भाग जाते हैं। We need to be strong like that. Our strong mentality, our strong individuals मिलकर ही strong organization को पैदा कर सकते हैं, उसे आगे ले जा सकते हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव कर सकते हैं और एक मजबूत और फ्रूटफुल लड़ाई लड़ सकते हैं। आई एडमिट दिस फैक्ट। So there are so many difficulties. If we talk about the solutions, solution is must. We learn the solution of every problems. There are so many solutions of these problems I have pointed out. First one is the Mool Nivasi identity. It can be proved a big tool in this way, in the path of
union, the path of unity. ये आइडियोलॉजी सिर्फ हमें मूल निवासी होने का ही एहसास नहीं कराती है, ये आइडियोलॉजी हमारे अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करती है. यू ऑल अंडरस्टैंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस? ये मेरा है, ये भाव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है. ये देश मेरा है, ये लैंड मेरी है, मैं इस देश का वासी हूं. दिस इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आप कितना ही डेवलप कर जाइए, आप कितने ही ज़्यादा पैसे कमा लीजिए, आप विदेशों में जाके बस जाइए, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारी अपनी लैंड के साथ रहती है. रहती है नहीं रहती है? आप ये बताइए. रहती है ना? तो दिस इज अवर लैंड. ये मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट है, मूल निवासी आइडेंटिटी है, आपको इस देश के लैंड के साथ जोड़ती है. If we are 85%, then at least 85% economic and social resources are mine, are ours. मेरे हैं 85% resources, but do we have authority on 85% resources of this country? Think over it. We have nothing. कुछ लोग उभरे हैं, लेकिन बट अभी भी ग्राउंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम इज स्टिल परसिस्ट. समस्या भी बहुत ज़्यादा है, काम करने की ज़रूरत है, लोग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. We need to believe in our constitutions. We have the best constitution of the world. जो भी दुनिया की बेहतरीन चीजें मानव सभ्यता के विकास के लिए चाहिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है. आपको इससे अलावा सोचने की जरूरत ही नहीं है. जितना आप अपने अच्छे के लिए सोच सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा आपका संविधान आपके लिए सोचता है. पढ़िए तो जाके उसको, अपनाइए तो, अप्लाई तो कीजिए. यू विल कम टू नो कि क्या है आपके पास. इतनी बड़ी धरोहर बाबा साहब हमें देके गए थे. उन्हें पता था ये सदियों से दबे कुचले लोग हैं, कि इनके लिए तो कुछ पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि आगे तक की लड़ाई लड़ सकें. दैट्स वाई बाबा साहब प्रोवाइड अस ए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें जोड़ने का काम करता है. इसके ऊपर हम चल रहे हैं तो हमारे डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स पैदा होंगे. स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हमें मदद करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत है इस दिशा में. सबकी मानसिकता को साथ लेते हुए चलना, सबके थॉट प्रोसेस को वैल्यू देते हुए चलने की हमें यहाँ पे जरूरत है. सबको वैल्यू देनी है. अगर हम किसी क्लास को छोड़ देंगे कि ये तो रिक्शा चला रहा है, इसको क्या पता, इसको अवेयर करने का कोई फायदा नहीं है. एटलीस्ट आप डाउन टोडन जो पीपल हैं, जो आज भी हैं बुरी कंडीशन में, उनके अंदर एक मोटिवेशन भर सकते हैं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, ताकि वो एक आसान जीवन जी सकें. मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो मेड के रूप में कार्य कर रहे हैं या छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी कुरीतियों की वजह से, दहेज की वजह से, शादियों में ज़्यादा पैसा खर्च करने की वजह से, मुंडन जो सेरेमनी है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और कर्जा लेके खर्च कर देते हैं, और फिर पूरा दिन घिसते रहते हैं उस कर्जे को उतारने के लिए, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरता उनके सिर से. ऐसी कुरीतियाँ उन्हें उभरने ही नहीं देती. यहाँ पे उनको लिए काम करने की आवश्यकता है. एटलीस्ट आपके संपर्क में जो भी इस प्रकार के लोग आते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको उनको अवेयर करवाना चाहिए कि ये सब खर्चा तुम्हें बेकार में कर्ज लेके करने की जरूरत नहीं है, ताकि वो भी अच्छी लाइफ जी सकें और अपने आप को उभार सकें. अपने पैसे को कुरीतियों पे खर्च करने की बजाय अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पे खर्च कर सकें. मेरी एक हेल्पर थी, थोड़े दिनों वो बीमार हो गई तो उसने अपनी बेटी को भेज दिया काम करने के लिए. मैंने कहा वो आप क्यों आ रहे हो काम करने के लिए, अभी तो पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास अच्छा मौका है, ये काम आप क्यों कर रहे हो.
तो मैंने उसको मोटिवेट करने की कोशिश की, कुछ अच्छा एक और अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करो ताकि तुम बेटर लाइफस्टाइल की तरफ चलो। उस लड़की ने वो चीज़ अपनाई भी कि दीदी आपने मुझे कहा था ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। उसका जीवन बदला। हमें हर इंडिविजुअल्स का जीवन बदलने की जरूरत है, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को आगे बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट इज फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी that we need to work on this. फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। हम जानते सभी हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। एप्लीकेशन लाइफ में कर लोगे तो दिस विल नॉट बी डिफिकल्ट टू फाइट विद एनीबडी एल्स, एवरीथिंग विल बिकम इजी। दे शो द राइट पाथ फॉर द लाइफ, फॉर द सोसाइटी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्क कल्चर को डेवलप करने के लिए भी हमें सेमिनार्स, वेबिनार्स चलाने चाहिए ताकि लोगों का वर्क कल्चर डेवलप हो। क्योंकि पहले तो कुछ लोग निकम्मे थे और फिर कुछ कोरोना काल में इसका एडवर्स इफेक्ट आया है, लोगों के काम के प्रति जो रुझान है वो बहुत कम हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ से पहले ही डिप्राइव्ड थे, अब और ज़्यादा डिप्राइवेशन की तरफ वो जा रहे हैं। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो हमें अंदर लोगों के अंदर इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए जो लोग जागरूक हो सकें और अपने वर्क कल्चर को बेटर बना सकें और फिर ताकि वो संस्थाओं के साथ जुड़कर बेहतरीन जीवन शैली की तरफ आ सकें और अपने डेवलपमेंट के लिए नए थॉट्स डेवलप कर सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। हमें एक गुड कम्युनिकेशंस भी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये मत सोचा कि ये तो अनजान है, मैं इससे क्या बात करूं। मैं तो अनजान लोगों से भी कई बार मेरा इंटरेक्टर हो जाता है। मैं ऑटो में जा रही हूँ और मुझे कुछ गलत दिख रहा होता है तो मैं बोल देती हूँ उसी वक्त। किसी का शोषण हो रहा है तो मैं उसको समझाने बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ये सब सही नहीं लगता। तो एक हर बंदे के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो गैप हमने अभी सर बता भी रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने। Again, I would like to thank for BAMSEF to unite the people in this way. ये जो कम्युनिकेशन गैप का काम BAMSEF कर रही है, दिस इज रियली वंडरफुल। हर वर्ष हम अलग स्टेट में जाके अपने अधिवेशन करते हैं, इट्स रियली गुड थिंग। जितने भी हम एक हमने जन चेतना जागृत की है, क्रेडिट गोज टू BAMSEF। पूरी रिसर्च के साथ हमारे BAMSEF के प्रतिद्वंदी आते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करने का काम करते हैं। ये आपको कहीं से नहीं मिल सकता जो BAMSEF दे रही है, कहीं से भी नहीं। क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी मोल्ड करके पढ़ाई जाती है, सामाजिक इशू पढ़ाए जाते हैं वो भी मोल्ड करके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको फैक्ट से अवेयर कराने का जो काम है वो BAMSEF करती है। सो वी नीड टू ज्वाइन BAMSEF। समझाइए आप अपने आसपास के लोगों को। एक कम्युनिकेशन जो गैप बना हुआ है, अगर हम जितने भी लोग BAMSEF के संगठन के साथ जुड़े हैं वो जाकर अपने एरिया में भी करते हैं, तो ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बनी हुई है। हमारे तो समाज में छोड़ो, तो हमारे तो घर में ही कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। हम समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं। फादर के पास एक अच्छा थॉट प्रोसेस है, वो अपने बच्चों में कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। वाई? अरे हमारे आने वाले बच्चे ही तो इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। हम अपने थॉट्स को अपने तक रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर उनको जोड़ने के लिए फिर संघर्ष, फिर BAMSEF जैसे दलों को और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। ये तो संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे एक चेन सिस्टम हमें फॉलो करने की जरूरत है। जो यहाँ आए, ट्रेनिंग ली, सीखा और उसको अपने बच्चों में जाके इनकलकेट कीजिए। क्या ये इतना मुश्किल है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। हमारी अंदरूनी वीकनेसेस होती हैं, उसकी वजह से चीजें मुश्किल बनती हैं, वरना मुश्किल कुछ नहीं है। बिल्कुल जो रोजी रोटी के लिए बंदा लड़ रहा है उसको अगर आपको जोड़ना है तब संघर्ष ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपको अपने ही बच्चे जोड़ने हो तब ज्यादा संघर्ष नहीं होना चाहिए। आप उनको वो माहौल दे रहे हो। वन मोर थिंग,
We need to have the individual responsibility. If I am a father, it's my responsibility to inculcate our ethics in our children. If I am a mother, it's my responsibility to build a high character of my child so that he may be beneficial for the society as well as for the nation. But do we do this thing? No. Women are indulged in household chores throughout the whole day. Sometimes when where they are working, then it becomes more difficult. They don't have any spare time for this type of things. But still, we need to do efforts to this. If I am a teacher, I need to make the strong personality of my students. If they are wrong, then I need to rectify and show the right way. I am a teacher and I am in my day-to-day life, I am watching all the scenario that how much extent our children are losing their value, losing their thought process. We need to make the positive thought process. One more thing that creates difficult, connect with the organization. Don't connect with the individual. I want to say this thing. When we connect with the people, okay. We need to connect the organization. जब आपका एक व्यक्ति विशेष से जुड़ते हो तो उसके साथ आपके नहीं बनती तो आप अपना आइडियोलॉजी छोड़ देते हो. We need to join with the organization. With this word, I would like to take my seat. You give me the chance to speak. Thank you so much. Jai Bhim, Jai Mool Nivasi.